ਹੈਲੋ ਬੱਚਾ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ PCM ਕੁਆਂਟਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ 5th ਲੈਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ 3 ਆयाम ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਹੂ ਡਿਸਾਈਡਸ ਇਟਸ ਸ਼ੇਪ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬੇਟਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਆ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆ, ਤੇ ਐਟਮ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਐਂਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ 'ਚ ਐਟਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਈਚ ਫੇਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਟੋਟਲ 6 ਫੇਸ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਟਮ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐਟਮ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਟਮ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ 2 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਟਾ 2 ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ 1 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਲਗਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਫੇਸ ਬਣਿਆ 5 6 7 8 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਐਜ ਲੈਂਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ABC ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਐਂਗਲਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਐਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਜ ਲੈਂਥ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 7 ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 7 ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ 7 ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੋਏਗੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ABC ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਚ ਕਰਨਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੋਟਲ 7 ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਨੇਗੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ, ਚਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜ ਲੈਂਥ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਲੈਂਥ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ, ਮਤਲਬ 3 ਐਕਸਿਸ ਬਣਨਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈਂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਐਜ ਲੈਂਥ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ ਜੁਆਇਨ। ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਆਪਣੇ 3 ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਹੀ ਸੀ ਐਜ ਲੈਂਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਏ ਬੀ, ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਿਓ। all the 3 axes, हाँ बेटा जो अपने 3 एक्सिस नेगे are of equal length। हाँ बेटा इन्हां सारियां दी जो लेंथ आ वो बिल्कुल सेम होगी। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि जिन्नी लेंथ बेटा A दी आ उन्नी लेंथ B ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਲੈਂਥ C ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ A B ਤੇ C ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਿਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जो बेटा इत्थे एंगल्स ने ना इत्थे एंगल होने चाहिए आ 90 डिग्री दे। इहदा मतलब की आ यानी कि अल्फा बीटा गामा तिना 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब आ भी 90 ते आ भी 90 ते बेटा जो आ एंगल आ वो भी कितना होना चाहिए, वो भी 90 होना चाहिए वा। मतलब 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तिन्ना विचकार एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब तिन्ने राइट एंगल टू ईच अदर होने चाहिए, मतलब दे आर right angle to each other। ठीक है जी, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूजे तो तिन्ना विचकार एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए वा। ये सी बेटा सैकेंड मेन पॉइंट इस याद रखना वा। कंक्लूजन की आ कि एज लेंथ सेम होगी, ए बी सी डी बिल्कुल सेम होगी। तो बेटा दूसरा कि तिन्ना विचकार जो एंगल है ना अल्फा बीटा ते गामा वो तिन्ने बेटा किहो जे होणगे, वो होणगे बेटा 90 डिग्री दे। ते ये सी अपना पहला सिस्टम जिसनों बेटा आपां की कहने आ, हाँ जी इसनों कहा जाता बेटा क्यूबिक। हाँ जी हुण आपां देखांगे कि क्यूबिक सिस्टम दे विच किहड़े किहड़े आउंदे नेगे। हाँ जी क्यूबिक दे विच सब तो पहला तो बेटा आउंदा वा सिंपल जिसनों आपां की बोलदे आ प्रिमिटिव। हाँ जी प्रिमिटिव भी क्यूबिक ही है, याद रखियो बेटा प्रिमिटिव
प्रिमिटिव भी क्यूबिक की अपनी क्लास च आउंदा बेटा। दूसरा है बेटा अपना बॉडी सेंटरेड। हाँ बेटा, बॉडी सेंटरेड भी बेटा किहदे विच आउंदा, बॉडी सेंटर्ड भी क्यूबिक विच आउंदा। ते तीसरा है बेटा फेस सेंटरेड। यस, फेस सेंटर्ड यूनिट सैल भी क्यूबिक दे विच ही आउंदा वा, जिन्हां दे विच एंगल बेटा ABC सेम हुंदे ने, सॉरी एज लेंथ ABC सेम हुंदे आ, ते एंगल अल्फा बीटा गामा तिन्नां विचकार एंगल किन्ने डिग्री दा हुंदा बेटा 90। किन्ना किन्ना च हुंदा वा, प्रिमिटिव दे विच भी हुंदा, बॉडी सेंटर्ड विच भी हुंदा, ते बेटा फेस सेंटर्ड दे विच भी हुंदा वा। ते जिहदी बेटा डायग्राम तुहानूं हुण दिखाई देनी शुरू हो गई होगी बेटा उपर। हाँ जी, ये सी बेटा अपनी पहली कैटेगरी, जिसनूं आपां की कहने आ, इसनूं कहा जांदा बेटा क्यूबिक। हाँ जी, ते हुण क्यूबिक दे विच रियल लाइफ अगर आपां रोजाना जिंदगी की गल करिए, आपां नूं क्यूबिक सिस्टम कित्थे देखण नूं मिलदा, दी एग्जाम्पल की है। हाँ बेटा, ਇਹਦੀ एग्जाम्पल है, सब तो पहली एग्जाम्पल NaCl। अगर बेटा आप सोडियम क्लोराइड की एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके देखिए तो क्रिस्टल लैटिस देखिए, तो वो बेटा हुंदा तुहाडा क्यूबिक ही हुंदा वा। ठीक है जी। तो दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पोटाशियम क्लोराइड। तीसरा है बेटा कॉपर, सिल्वर। ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स ने जो अपनिया क्यूबिक सिस्टम दे विच आउंदियां ने। आई होप बेटा तुहानूं सारियां क्यूबिक सिस्टम देखिया होणगियां कि प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड ते फेस सेंटर्ड ये क्यूबिक के अंडर ही आउंदियां ने। ते एग्जाम्पल की NaCl, KCl, कॉपर, सिल्वर। ठीक है बेटा जी। मेन पॉइंट की आ, ABC सेम होगा तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा। हाँ जी बेटा, हुण अपनी सैकेंड कैटेगरी आउंदी आ टैट्रागोनल। हाँ जी, हुण टैट्रागोनल किहड़ी क्लास आ बेटा, हुण आपां डिस्कस करते हैं टैट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। यस बेटा, टैट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये सिस्टम दे विच की खास है, देखो बेटा खास तो सिर्फ तीन चीज़ां ने बनाना वा। एक तो है ABC, तो दूसरी की है बेटा तीजी चीज़, तीन चीज़ां अल्फा बीटा गामा। बस उन्हें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, ऑटोमैटिकली बेटा पूरी स्ट्रक्चर दे विच की आउण लग जूगी चेंज। सब तो पहले टैट्रागोनल दे विच स्टडी की करने वाला, की समझण वाला। हाँ बेटा, टैट्रागोनल दे विच सेम पहला की तरह बेटा जिन्ना विचकार जो एंगल आ तिन्ने राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब A B ते C विचकार जो एंगल आ 90 डिग्री आ, मतलब all three axes are right angle to each other. The all three axes are right angle to each other। ਇਹਦਾ मतलब आ कि अल्फा बीटा ते गामा तिन्ने बेटा किन्ने डिग्री दे ने पहला की तरह। हाँ बेटा, अल्फा बीटा गामा तिन्ना विचकार जो एंगल आ वो किन्ने डिग्री का बन चुकिया वा, तिन्ना विचकार जो एंगल है बेटा वो है 90 डिग्री। बट थोड़ी जी इत्थे एक चेंज है, वो चेंज की आ कि इत्थे बेटा जो एज लेंथ है ना ABC, ये बेटा कोई दो एक्सिस बिल्कुल की होंगे सेम होंगे, बट बेटा एक एक्सिस सेम नहीं होगा। ठीक है जी। बट only two axes are सेम और इक्वल, मतलब सिर्फ दो ही एक्सिस है जे होंगे जिन्हां दी लेंथ सेम होगी। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जिवें हुण A 5 सेंटीमीटर आ, B भी 5 सेंटीमीटर आ, मान लो C 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब की है A इज इक्वल टू B, बट A एंड B आर नॉट इक्वल टू C। ठीक है जी। ये आ बेटा फंडा जो आप देखा टैट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम दे विच। ते बेटा हुणे स्ट्रक्चर किहो जी दिखाई देगी, ये सब तो मेन पॉइंट है। हाँ जी, चलो जी हुण आपां देखते हैं। यानी कि दो एक्सिस बिल्कुल सेम ने, तीजा एक्सिस सेम नहीं हैगा। चलो जी बना के देखते हैं वो किस तरह होगा। लो जी, हाँ जी,
लो जी अपनी स्ट्रक्चर हो गई है रेडी। हाँ बेटा स्ट्रक्चर से गल नोट करो कि इत्थे जो लेंथ आ दो एक्सिस दी बेटा वो बिल्कुल की होगी, दो एक्सिस दी लेंथ बिल्कुल सेम होगी। जिमें कि बेटा मान लो आ एक्सिस ए आ ते आ एक्सिस की आ बी। इत्थे बेटा ए ते बी बिल्कुल सेम ने, बट जो तीजा एक्सिस है ना सी, बेटा ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਤੀਜੇ ਐਕਸਿਸ ਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਫ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जो टैट्रागोनल आ ये टैट्रागोनल बेटा किन्नी तरह का होंगे। टैट्रागोनल बेटा सिर्फ दो तरह का होंगे वा। एक तो बेटा सिंपल प्रिमिटिव जो मैं आ बनाया वा, जिस एटम सिर्फ बेटा कितने ने, एक है ने कॉर्नरस के उपर, सिर्फ एटम कॉर्नर के उपर आ, यानी कि पहली कैटेगरी ये कि हाँ जी बेटा पहली कैटेगरी है ये प्रिमिटिव, जिसनों आप की बोलते हैं सिंपल। सिंपल भी बेटा टैट्रागोनल च ही आता वा, तो सिंपल क्यूबिक भी आता सी, भी गल याद रखियो। सिंपल आ चुके अपने टैट्रागोनल में, जिसनों आप प्रिमिटिव कहने और प्रिमिटिव। हाँ बेटा दूसरा, दूसरा कौन है, दूसरा है बेटा बॉडी सेंट्रेड। यस बॉडी सेंट्रेड यूनिट सैल भी टैट्रागोनल चाहता है ना, मतलब एटम कितने लगा दो बेटा, एटम नू इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर दे विच लगा दो, तो बेटा जी स्ट्रक्चर तैयार हो जाऊगी वो बेटा बॉडी सेंटर्ड होगी। अगर एटम कल्ले कॉर्नर ते विचाले नहीं है बेटा वो सिंपल आ। सिर्फ आ दो ही स्ट्रक्चर्स ने बेटा सिंपल ते बॉडी सेंटर्ड, जो कि आते ने टैट्रागोनल आते ने। पिछले स्ट्रक्चर देखा सी बेटा क्यूबिक दे विच प्रिमिटिव भी सी, बॉडी सेंटर्ड भी सी, फेस सेंटर्ड भी सी, लेकिन टैट्रागोनल दे विच बेटा प्रिमिटिव भी हुंदा वा ते बॉडी सेंटर्ड भी हुंदा वा। ते मेन पॉइंट याद रखने वाले की ने, पहला पॉइंट की आ कि ये विच एंगल तिन्ने दा 90 डिग्री हुंदा पहलां दी तरह, ते बेटा सिर्फ दो ही एक्सिस सेम हुंदे ने, तीजा एक्सिस सेम नहीं हुंदा, मतलब ए ते बी सेम ने, सी सेम नहीं हैगा बेटा, जिहदे करके सी दी लेंथ थोड़ी जी बढ़ सकती है या घट सकती है, जिहदे करके शेप चेंज आऊगी। ते सिंपल ते बॉडी सेंटर्ड ये दोनों टैट्रागोनल सिस्टम दे विच जाते हैं। हाँ जी बेटा हम आप एग्जाम्पल देखा, रियल लाइफ के एग्जाम्पल की है बेटा, यदि एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा वाइट टिन। यस वाइट टिन पहली एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल की है बेटा, दूसरी है कैल्शियम सल्फेट। यस बेटा हाँ जी ये दो एग्जाम्पल बेटा तुम याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा ईजी तो सिंपल ने, तो ईजिली याद रह जानी है। ठीक है जी हम बेटा आज थर्ड सिस्टम पर 2 कर लिया, आप टोटल 7 करने ने। तीजा है बेटा ऑर्थोरोम्बिक। यस तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। हाँ बेटा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम दे विच की खास आ, चलो बेटा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये की चेंज आती है। हाँ जी सब तो मेन पॉइंट कि इत्थे बेटा तिन्ने दे तिन्ने एक्सिस इक्वल नहीं होंगे, ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल। पहला पॉइंट की बनूंगा, ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ, मतलब तिन्ने एक्सिस सेम नहीं होंगे, मतलब ना ए बी दे बराबर होगा ना बी सी दे बराबर होगा, तिन्ना दी लेंथ बेटा सेम नहीं होगी। ते एक पॉइंट बेटा कॉमन है ये भी कि हाँ जी सारे राइट एंगल टू ईच अदर होंगे, मतलब सारे विचकार एंगल कितना होगा बेटा 90 होगा, मतलब अल्फा बीटा ते गामा विचकार एंगल कितना वा 90, बिल्कुल सेम क्यूबिक ते टैट्रागोनल दी तरह। राइट एंगल टू
ईच अदर। तिन्ना विचकार जो एंगल आ वो 90 90 आ, पर एज लेंथ बेटा सेम नहीं हैगी। ठीक है जी, मतलब ए बी सी इक्वल नहीं हैगी तो देखने नूं किहो जिहा बनूगा बेटा, चलो आओ देखते हैं। हाँ जी, सारे एक्सिस बेटा आपां डिफरेंट डिफरेंट लेंथ दे लेने ने। ठीक है जी, लॉक करो ज्वाइन पॉइंट्स नूं। ज्वाइन करने तो बाद बेटा अपन स्ट्रक्चर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। लो जी, स्ट्रक्चर इज रेडी। हाँ जी, इत्थे जो बेटा एंगल है ना, लेंथ है ना, जो लेंथ ए दी आ ते जो लेंथ बी दी है तो लेंथ सी दी आ बेटा, तिन्ने बिल्कुल सेम नहीं। ए मान लो बेटा 5 आ, बी मान लो बेटा 7 आ, सी मान लो बेटा 9 सेंटीमीटर आ। इस करके तिन्ना दी लेंथ बिल्कुल भी सेम नहीं हैगी, पर एक चीज़ कॉमन आ, तिन्ना विचकार जो एंगल आ वो बेटा 90 डिग्री है। सो क्लीयर होया। इत्थे बेटा एंगल बिल्कुल भी कंप पहला की तरह सेम रहिंदा, वो चेंज नहीं हुंदा, लेकिन जो एज लेंथ है ना वो बेटा बिल्कुल अनइक्वल हुंदी है, मतलब तिन्ने बिल्कुल भी सेम नहीं हुंदे। सो बेटा हुण ये सिस्टम की खास गल की है, सिस्टम की खास गल आ कि ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ बेटा जिन्ने भी सिस्टम आ सारे आउंदे आ, मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ भी आउंदा, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ बॉडी सेंटर्ड भी आउंदा, ਇਹਦੇ अंदर फेस सेंटर्ड भी आउंदा, ਇਹਦੇ अंडर एंड सेंटर्ड भी आउंदा वा। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ, जिसनों बेटा प्रिमिटिव बोलते हैं। दूसरा है बेटा बॉडी सेंट्रेड, यस। तीसरा है फेस सेंट्रेड, ते बेटा चौथा है एंड सेंट्रेड। ये जो बेटा एक कल्ला ही यह एक सिस्टम आ, याद रखना सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है, कल्ला ही यह सिस्टम आ बेटा ਜਿਹਦੇ अंडर सारे ही यूनिट सैल आउंदे। ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬॉडी भी ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਫੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंड सेंटर्ड यूनिट सैल भी बेटा इसी कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। बस फर्क की आ कि ਇੱਥੇ बेटा जो एज लेंथ आ वो सेम नहीं होगी, ਤੇ बस एंगल ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ सेम होगा। तो यदि बेटा हम आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल की आ डायग्राम्स बेटा तुम दिखाई दे रही होनी, उपर आनी शुरू हो गई होनी, तो बेटा एग्जाम्पल नोट करते हैं। हाँ जी, सब तो पहली एग्जाम्पल है बेटा वो है रोहम्बिक सल्फर। पहली एग्जाम्पल है रोहम्बिक सल्फर, ये पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल है बेटा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। हाँ जी, तीजी एग्जाम्पल है बेटा लैड कार्बोनेट। आ बेटा तीन एग्जाम्पल तुसीं नोट करनियां, रोहम्बिक सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट, तीजी है बेटा लैड कार्बोनेट। हाँ जी, तो चौथी है बेटा बेरियम सल्फेट। चौथी एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। ये सारे बेटा किहदे विच आउंदे ऑर्थो रोहम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, जिहदे विच बेटा ABC सेम नहीं हुंदी ते एंगल तिन्नां विचकार 90 डिग्री का हुंदा। ये कल्ला ही इहो जिहा सिस्टम आ बेटा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ बेटा अपनी नेक्स्ट ਹੁਣ फोर्थ है, फोर्थ इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। यस बेटा, अगला है अपना मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, तो देखने में पिछे क्लीनिक लगे, क्लीनिक तो याद रखो डॉक्टर वाली फीलिंग आती जिवें किसी डॉक्टर के क्लीनिक जाने हैं। हाँ बेटा, उत्थे याद रखियो थोड़ा डिफरेंट आ, बाकी डिफरेंट की है बेटा। हाँ जी, याद रखियो इत्थे भी पिछले केस की तरह, मतलब रोहम्बिक की तरह, ऑर्थोरोम्बिक की तरह तिन्ने लेंथ बेटा सेम नहीं होणगियां। ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल, ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल। ਇਹਦਾ बेटा कॉपी पेस्ट किया, मतलब A B ਤੇ C ਤਿੰਨੇ इक्वल नहीं होंगे। बट एक स्पेशल चीज़ की है, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही डिफरेंट करता है इनू। हाँ बेटा, इत्थे जो एंगल अल्फा ते जो बेटा गामा वा ना, वो दोनों हुंदे ने बेटा 90 डिग्री दे।
बट जो एंगल अपना बीटा ना वो बेटा 90 डिग्री का नहीं हुंदा, यानी कहने का मतलब ये सिर्फ दो ही एंगल बेटा की हुंदे नेगे, ओनली दो एंगल आर 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। हाँ जी, टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। कोई भी दो एंगल में अल्फा ते गामा ले लें 90 डिग्री का वा, बट बेटा एक एंगल 90 का नहीं होगा। मैं किहड़ा लिया, वो बेटा मैं लिया बीटा। बीटा इत्थे 90 डिग्री का नहीं हैगा, जिहदे करके बेटा स्ट्रक्चर च थोड़ी जी चेंज आऊगी। तो चेंज की होगी, नोट करियो। हाँ जी, चेंज आऊगी कि जो तुहाडी स्ट्रक्चर है ना बेटा वो थोड़ी जी टेढ़ी हो जाएगी। हाँ जी, थोड़ी जी इनकलाइंड हो जाएगी, तो देखने ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ बेटा, ਹੁਣ नोट करो। लो जी देखो बेटा, ये है स्ट्रक्चर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੋ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अल्फा ते गामा 90 दे आ, लेकिन बेटा जो बीटा वा वो 90 का नहीं हैगा। इस करके स्ट्रक्चर थोड़ी जी की हो चुकी है, सिर्फ 90 का ना होने करके स्ट्रक्चर थोड़ी जी इनकलाइंड हो चुकी है। ठीक है जी, थोड़ी जी टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि इत्थे जो एंगल बीटा वा वो 90 डिग्री का नहीं हैगा, 90 तो घट हो सकता, वध भी हो सकता, वो बेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता वा। ठीक है जी, हुण आपां देखांगे कि मोनोक्लिनिक दे विच किहड़ियां-किहड़ियां आउंदियां। बेटा मोनोक्लिनिक सिर्फ दो स्ट्रक्चर आउंदियां। सब तो पहलां किहड़ी आउंदी है, एक थोड़ा सारे च कॉमन है, हैगी सिंपल, जिसनूं आपां की कहने आ प्रिमिटिव। तो सब चीज़ आउंदी है बेटा, सिंपल जां प्रिमिटिव। जो बनाई है बेटा मैं यही बनाई है, सिंपल ही बनाई है। तो दूसरी है बेटा एंड सेंट्रेड। यस, एंड सेंट्रेड दे विच किसी भी दो ओपोजिट फेसिस ते आपां एटम लगा देने आ बेटा, स्ट्रक्चर दिखाई देनी शुरू हो गई होनी आ। तो मैं स्ट्रक्चर हथ नाल बना भी दी आ। स्ट्रक्चर बेटा एंड सेंट्रेड दी आ। किसी भी दो ओपोजिट फेसिस ते मैं की लगाते बेटा, एटम लगाते। ये दो ही आउंदे ने, एक सिंपल एक बेटा एंड सेंट्रेड। हाँ जी, इहदी एग्जाम्पल की है बेटा, इहदी एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। एग्जाम्पल है मोनो क्लिनिक सल्फर। ते दूसरी एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। हाँ बेटा, दूसरी की है सोडियम सल्फेट, वो भी हाइड्रेटेड 10 मॉलिक्यूल वाटर दे बेटा की हुए हुए ने इहदे नाल अटैच्ड ने। हाँ जी, ये सी बेटा दो एग्जाम्पल्स जो कि बड़ियां सिंपल ने। तो बेटा तुसीं याद रखने, मेन याद रखना स्ट्रक्चर चीज़ की है कि ए बी सी सेम नहीं हुंदा। ते दूसरा बेटा अल्फा ते गामा कोई दो एंगल बेटा 90 डिग्री, तीजा एंगल 90 का नहीं हुंदा। थर्ड एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटा ये सब तो मेन पॉइंट आ। होर मेन पॉइंट की है, एक सिंपल ते एंड सेंटर्ड बेटा दोनों मोनोक्लिनिक की कैटेगरी के अंडर ही आउंदे ने। ठीक है जी, चलो बेटा नेक्स्ट सिस्टम किहड़ा है, नेक्स्ट सिस्टम है जी अपना हेक्सागोनल सिस्टम। यस, हेक्सागोनल सिस्टम। हाँ बेटा, हेक्सागोनल सिस्टम दे विच सिर्फ इक्को ही एग्जाम्पल आ, वो बेटा है प्रिमिटिव। ते च खास गल नोट करन वाली की है। हाँ बेटा, हेक्सागोनल दे विच एज लेंथ सिर्फ किसी दो दियां सेम होणगे, मतलब ए ते भी सेम होणगे, तीजा बेटा सेम नहीं होगा। इट हैज़ एज लेंथ ऑफ, इट हैज़ टू एज ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि सिर्फ बेटा दो ही एज होणगे जिन्हां दी लेंथ बेटा की होगी इक्वल, मतलब सेम होएगी। ठीक है जी, मतलब जिमें कि ए इज इक्वल टू बी होगा, बट ए किहदे इक्वल नहीं होणगे बेटा, इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि सी दी लेंथ सेम नहीं होगी। हुण बेटा गल करते हैं इत्थे एंगल दी। हाँ बेटा, इन्हां विचों सिर्फ जिहड़े दो एंगल होणगे,
मेन पॉइंट आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, ओनली टू एंगल्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, सिर्फ दो ही एंगलों विचकार एंगल 90 का होगा। मतलब जिमें अल्फा ते बीटा ले लो, मान लो बेटा ये दोनों ही मान लो 90 डिग्री दे आ। ਜਿਹੜਾ तीसरा एंगल हो ना बेटा, इत्थे ਜਿਹੜਾ तीसरा एंगल आ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 120 डिग्री का। आ गल बेटा नोट रखियो कि इत्थे जो थर्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, ते दो एंगल किन्ने दे होणगे 90 डिग्री दे। ठीक है जी, टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड वन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो बेटा फिर हैग्जागोनल जी स्ट्रक्चर आ वो किहो जी दिखाई दिंदी आ। चलो जी हुण आपां वॉच करते हैं तो किमें बनूगी बेटा वो भी नोट करते हैं। अल्फा तो बीटा 90 डिग्री का, गामा कितने डिग्री का बेटा इत्थे हैगा वा जी अपने कोल 90 डिग्री का। हाँ जी, हैग्जा वर्ड लग गया तो बेटा अपन हैग्जागोन की स्ट्रक्चर तो फिर देनी पऊगी। तो किमें बनता वा आओ बेटा नोट करते हैं। चलो सब तो पहला अपन ड्रॉ करके देखते हैं कि ये ड्रॉ किमें हुंदा वा। हाँ जी, सब तो पहले तो बेटा सिंपल ही स्ट्रक्चर बनानी है। तो सिंपल स्ट्रक्चर किहो जी होगी नोट करो। हाँ जी, मैं सिंपल बनाने लगे सब तो पहला, जो आप ऑलरेडी हम तक बनाते आए हैं। बस एक सी लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी दो एज लेंथ सेम होनी है। हाँ जी, इन्होंने करो ज्वाइन। लो जी, ये हो चुके ने जी ज्वाइन, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर बन चुकी है। बट इन हजे बेटा तो आप की बनाना, ये तो बनाना जी आप हैग्जागोनल। तो हैग्जागोनल किमें बनूगा आओ देखते हैं। आ सच एक पॉइंट मिस हो गया सी, ओहो थोड़ा थल्ले बनाना सी। चलो कोई ना, लो जी। हाँ जी, हुण इन्हां पॉइंटां दोनों पॉइंटां दी पॉइंट नंबर 1 इनू पॉइंट नंबर 2 को बेटा बिल्कुल सामने एक होर पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट 1 ते 2 के सामने एक पॉइंट ड्रॉ करो। बिल्कुल उहदे एक नीचे भी बेटा ड्रॉ करना आपां, जो कि इन्हां दोनों के विचाले होना चाहिए। लो जी, हो गया जी पॉइंट ड्रॉ। एक पॉइंट बेटा ड्रॉ करना आपां बिल्कुल इन्हां दोनों के विचाले, जो बेटा उरे है। लो जी, बस एक पॉइंट रह गया ये नीचे, ये कॉरस्पॉन्डिंग उरे होगा, एक उरे होगा। लो जी, हुण अपनी स्ट्रक्चर जी हो जाऊगी तैयार। बस इन्हों करो हुण आपस दे विच ज्वाइन। हाँ जी बेटा, हुण ये मैं सॉलिड डॉटेड नाल ज्वाइन कीते सीगे, हुण इन्हों करूँगा मैं सॉलिड लाइन दे नाल ज्वाइन। देखियो जी, तो हैग्जागोन बनना बेटा शुरू हो जाऊगा। लो जी, नीचे तो हैग्जागोन बन चुका वा। इसी तरह बेटा हम बनूगा ऊपर भी सॉलिड लाइन ना ज्वाइन करो। डन इट। हाँ जी, ये तो बेटा हैग्जागोनल स्ट्रक्चर अपनी जो रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, देखो हैग्जागोन बन रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नीचे ज्वाइन करो, तो इत्थे भी ज्वाइन कर। हाँ जी, इस तरह बेटा साडी जो हैग्जागोनल स्ट्रक्चर आ वो रेडी हो चुकी है। इत्थे जो एंगल आ अल्फा बीटा जो 90 का वा, तो बेटा जो गामा वा वो 120 का वा। ए बी ते सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ए बी बेटा बिल्कुल इक्वल लेंथ दे आ, ते सी इक्वल लेंथ का नहीं हैगा। हाँ जी, तो नैक्सट है जी अपना नैक्सट 6वां सिस्टम, उसनों बेटा आप बोलते हैं ट्राइगोनल सिस्टम। हाँ जी, अगला है जी अपना ट्राइगोनल सिस्टम।
क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। हाँ बेटा ट्राइगोनल सिस्टम च हुंदा की आ, इत्थे जी जो अपने एज लेंथ ने, जिन्ने भी अपने एज ने सारे इक्वल लेंथ दे ने, बट विच आर इनकलाइंड एट सेम एंगल। हाँ जी, ये बेटा जे इत्थे ना करना की आ, इत्थे जो बेटा आप पॉइंट ले आ ना, ये पॉइंट बेटा इनकलाइंड होणगे, मतलब इन्हां तिन्नां विचकार जो बेटा एंगल बनूगा ना, वो एंगल किन्ने डिग्री का होगा, वो हुण तुसीं नोट करियो कि अल्फा ते बीटा तो सेम होणगे। इनकलाइंड करने के लिए जो तीजा एंगल लवांगे बेटा ना, वो 90 डिग्री का नहीं होगा। नोट करने वाली कि तिन्ने विचकार लेंथ बिल्कुल सेम है, मतलब ए बी ते सी ये बिल्कुल की ने बेटा, वो सेम ने। आल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारियां दी लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ते अगला पॉइंट की है बेटा, अगला पॉइंट है कि बेटा जो एंगल है ना, इत्थे जो एंगल है ट्राइगोनल आ, इत्थे अल्फा ते बीटा का वो तो की है बेटा 90 डिग्री, बट जो तीजा एंगल है ना गामा, वो 90 नहीं है, जिदे करके स्ट्रक्चर थोड़ी जी की हो जाएगी बेटा, ये इनकलाइंड हो जाएगी। बस थोड़ा जा बेटा मोनोक्लिनिक ते ट्राइगोनल बिल्कुल सेम ने, फर्क की है मोनोक्लिनिक च ए बी सी सेम नहीं, तिन्ने डिफरेंट होंगे आ, बस तिन्ने की ने ये सेम आ, स्ट्रक्चर ने की हो जाना बेटा इनकलाइंड हो जाना वा। तिन्ना विचकार जो लेंथ है वो बिल्कुल की होनी चाहिए आ, वो सेम, तो स्ट्रक्चर किमें दिखूगी, देखो बेटा लेंथ बिल्कुल सेम लैनी है, इत्थे ए बी ते सी बिल्कुल सेम होने चाहिए ने, कोई फर्क बेटा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर थोड़ी जी इनकलाइंड होगी, इनकलाइंड ता होगी गामा 90 डिग्री का नहीं है। हाँ जी, गामा 90 डिग्री का ना होने करके ये सारे स्ट्रक्चर इनकलाइंड मतलब टेढ़ी हो चुकी है। पर तिन्ना विचकार बेटा जो एंगल है ना, ये एंगल हैगा वा 90 डिग्री, सॉरी एंगल हैगा वा इत्थे दोनों विचकार 90 का, ते तीजा एंगल 90 का नहीं हैगा। अल्फा ते बीटा 90 है, गामा 90 नहीं हैगा। ए बी ते सी ये तिन्नी बेटा सेम लेंथ दियां ने। ते जिहड़ी मैं स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, मैं बनाई है सिंपल, ਜਾਂ जिसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕੱਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ बेटा, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹ ਚ ਐਟਮ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ बेटा ग्रेफाइट पिछले केस की, ये पहली एग्जाम्पल। दूसरी है बेटा जिंक ऑक्साइड, तीसरी है कैडमियम सल्फाइड, ये तीजी एग्जाम्पल सी। ते इहदे विच एग्जाम्पल की है बेटा, इत्थे एग्जाम्पल हैगी आ कैल्शियम कार्बोनेट, मरकरी दी और बेटा सिनाबार HgS, हाँ जी, ते क्वार्ट्ज। ये बेटा किहदे अंदर आउंदे आ, आउंदे आ ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम दे अंदर, जिहदे विच सिर्फ एंगल गामा जो तीजा एंगल आ 90 डिग्री का नहीं होंदा, जिहदे करके स्ट्रक्चर थोड़ी जी इनकलाइन टेढ़ी हो जाती है। यस, थोड़ी जी टेढ़ी हो जाती है। हाँ बेटा, तो लास्ट स्ट्रक्चर है जी अपने कोल, हाँ जी पहला कीता सी मोनोक्लिनिक, ते हुण जी अपनी है ट्राई क्लिनिक। सब तो सौखी याद रखने वाली ट्राई क्लिनिक दे विच की हुंदा वा, दस दी बेटा पहले ही दस देना कि ट्राई क्लिनिक के अंदर भी प्रिमिटिव ही आउंदा वा। हाँ जी, ट्राई क्लिनिक पहला कीता सी मोनो क्लिनिक। ट्राई का मतलब बेटा की हुंदा, ट्राई का मतलब हुंदा वा 3। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ए बी ते सी आ वो बेटा तिन्ने इक्वल नहीं हुंदे, ठीक है जी। all 3 axes are not equal, ABC सेम नहीं हुंदी, ते बेटा all 3 angles are not right angle
टू ईच अदर, मतलब तिन्ना विचकार एंगल भी 90 डिग्री का नहीं हुंदा, ना अल्फा ना बीटा ना गामा, तिन्ने ही 90 डिग्री दे बेटा नहीं हुंदे। यही इहदी स्पैशियलिटी आ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ 90 डिग्री ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, मतलब ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਬਣੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਤੇ ਟਰਾਈਕਲਿਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, बस लेंथ सेम ना बनाओ, लेंथ छोटी बड़ी कर दो, ऑटोमैटिकली तुहाडी ट्राईक्लिनिक स्ट्रक्चर बन जूगी। लेंथ नहीं सेम करनी, एंगल नहीं सेम करना, जह जी मर्जी बना दो बेटा, तुहाडी स्ट्रक्चर बन जूगी। ये है ट्राईक्लिनिक। अल्फा बीटा गामा 90 नहीं है, ABC 90 नहीं है। एग्जाम्पल की है बेटा, दी एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड 5H2O। दूसरी एग्जाम्पल की है बेटा, दूसरी एग्जाम्पल है पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कि बेटा अपना एक इंडिकेटर है। हाँ जी बेटा, ये दो एग्जाम्पल आ। ये आउंदा कौन है, ये अंदर आउंदा बेटा अपना सिंपल ते प्रिमिटिव यूनिट सैल। हाँ जी, ये सी जी अपनिया 7 डिफरेंट काइंड दे बेटा क्रिस्टल सिस्टम, जो कि आप 3 डिमेंशन दे विच की करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। आई होप बेटा तुहानू ये सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीयर हो गए होणगियां। हाँ बेटा, हरेक कैटेगरी दे विच देखिया सी कि क्यूबिक विच प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड हुंदा, ट्राइगोनल च प्रिमिटिव ते बॉडी सेंटर्ड हुंदा, ते ऑर्थोरोम्बिक दे विच प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड हुंदा, मोनोक्लिनिक विच प्रिमिटिव ते एंड सेंटर्ड हुंदा, हैग्जागोनल ट्राइगोनल ते ट्राइगोनल तिन्ना दे विच बेटा प्रिमिटिव 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 हुंदा वा। जिहड़ियां स्ट्रक्चर बेटा बन चुकियां ने, इन्हां नूं कहंदे की ने, हाँ बेटा 14 तरह की डिफरेंट टाइप जी स्पेस लैटिस बनी है, इसनूं कहने आपां 14। हाँ जी, कहने की हाँ, इसनूं आपां कहने 14 ब्रावियस लैटिसिस। हाँ बेटा, की कहने 14 ब्रावियस लैटिसिस कहा जाता। हाँ यस, जो कि बेटा एक फ्रेंच मैथमेटिशियन सीगा। फस्ट टाइम बेटा ने ये 14 सिस्टम डिस्क्राइब किए सी, जिन्होंने बेटा कंप्लीट फोटो हुण तुहानू दिखाई देनी शुरू हो गई होनी है। हाँ जी बेटा, ये सी तुहाडे 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो टोटल किन्ने बन चुके हैं, टोटल बन चुके हैं बेटा 14 ब्रावियस लैटिसिस। आई होप बेटा तुहानू सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। सो बेटा थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल PCM क्वांटम अकेडमी।